Dear students, in the second lecture of D block chemistry, we will discuss oxidation states. बहुत ही important concept है oxidation states in D block elements, that's transitional elements. तो यहाँ पे discuss करते हैं आखिर ये D block elements कौन कौन से oxidation status show करते हैं. So this question is frequently asked in board exams as well as from competitive exam point of view. Questions may be asked. We will see what type of questions are asked in competitive exams. But in board exam, the question is asked, explain why transition elements show variable oxidation status. So our question will be variable oxidation states of transition elements. So these transitional elements, they show variable oxidation states. They show variable oxidation states, means they show different oxidation states, means they form compounds in different oxidation states. Variable oxidation states. Now what is the reason what is the reason of different existence of a compound, existence of a transition element in different oxidation states? We know that हमें पता है इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है that is n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2. This is general electronic configuration. For example, in case of first transition series we have scandium, titanium, vanadium like this. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1 4s2, सिमिलरली 3d2 4s2, 3d3 4s2. तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो ये हमारा डी सबशेल और ये जो हमारा एस सबशेल है, इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल. द एनर्जी डिफरेंस ऑफ दिस ns सबशेल एंड n-1d सबशेल इट इज वेरी स्मॉल. So हम यहाँ पे लिखेंगे they show variable oxidation status, the energy because the energy difference या ऐसे लिखो the energy difference between ns and n-1d subshell is very small. उसकी वजह से क्या होगा, अगर एनर्जी डिफरेंस कम है, therefore what will happen, these ns electrons as well as these n-1d electrons, both of them will take part in bond formation. Because of small energy difference, both these ns electrons and n-1d electrons, they will take part in bond formation. As a result of which both ns and n-1d electrons take part in bond formation. They take part in bonding and hence show different oxidation states by the loss of these ns electrons and n-1d electrons, and hence show variable oxidation states. They can lose electrons from ns as well as n-1d electrons, and hence show variable oxidation states. This is the reason why they show variable oxidation states. तो reason क्या है, हमारा जो ns सबशेल है और n-1d सबशेल है, इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है that's very small. Because of that small energy difference, it is easy to lose electrons from this ns subshell as well as this n-1d subshell. As a result, both these electrons, these ns electrons and n-1d electrons, they take part in bond formation. As a result, different oxidation states are shown by these compounds. Let us see what are these oxidation states. तो इनको डिस्कस करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं. Now see, हमारे पास क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन. तो स्कैंडियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d1 4s2. तो स्कैंडियम में क्या होगा, दीज आर ns electrons. अगर ये ns electrons लॉस होंगे then the oxidation state will be +2.
If they lose this electron as well, these two electrons as well as this d electron, then the oxidation state will be +3. Means scandium will form compounds in +2 and +3 oxidation state. It can also form compounds in +1 oxidation state if only one electron is lost from NS subshell. Means +1 oxidation state can also be there. So scandium will form compounds in +1 oxidation state by the loss of 4s electron, +2 oxidation state by the loss of all these 4s electrons, +3 oxidation state by the loss of 3d electrons. So टाइटेनियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2. सी यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे देन इट्स +2, अगर इसमें से ये दो और इसमें से एक देन इट इज +3, अगर ये दो और ये दोनों भी लॉस होंगे देन इट इज +4. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इन इट्स कंपाउंड्स इज +2 +3 +4. इसकी एग्जांपल्स हमने बहुत सारी देखी हैं. कहाँ, जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पे एग्जांपल्स देखी थी. फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था ये वाला कंपाउंड टाइटेनियम हेक्सा एक्वा 3+, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम +3 है. बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d3 4s2. व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इफ इट लूजेस दीज 4s इलेक्ट्रॉन्स +2. यहाँ से दो, यहाँ से एक, दैट इज +3. यहाँ से दो और इसमें से दो, दैट इज +4. और यहाँ से दो और ये 3, दैट इज +3. दिस इज +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब क्या होता है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एलिमेंट ज्यादा एग्जिस्ट करता है. दे आर नोन एज मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोस्ट कॉमन होती है, उन्हीं को हम मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं. जैसे कि टाइटेनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है. दीज आर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेनेडियम. जैसा कि हमने कांटेक्ट अप्रोच में पढ़ा था, we use a catalyst V2O5 vanadium pentoxide. The oxidation state of vanadium in this case is 5. See chromium. Chromium में 24 atomic number है, configuration is 3d5 4s1. So in this case what will happen? In this case what will happen? We can lose this electron. Compound will show +1 oxidation state. One from here, that is +2. One from here, two from here, that is +3, +4, +5 and +6. Out of these, the most common oxidation state, most stable, most compounds are observed in +3 and +6 oxidation state. So बहुत सारे compounds chromium के +3 और +6 oxidation state में पाए जाते हैं. Now you can check the oxidation states of different elements over here. आप यहाँ से oxidation status इन elements की निकाल सकते हो. You can check the oxidation status and you can see the oxidation states of different elements in these cases. यहाँ से आप किसी भी element की oxidation state निकाल सकते हो. Sorry for disturbance. सी यहाँ से हमने क्रोमियम में देखा, क्रोमियम में हमारे पास कितने डी इलेक्ट्रॉन्स थे, 3d5. दीज आर 3d5 इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दीज आर 3d5 एंड दिस इज 4s1. तो इट कैन लूज ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स. इट विल फॉर्म कंपाउंड्स इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +4 +5 +2 +1. सो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 एंड +3. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 है. CrO3, जैसे कि हमने अल्कोहल्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. दिस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज इन Cr2O3. दिस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मैग्नीज की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s2. 3d5 4s2 means it can lose these two electrons +2. It can lose one more electron +3, one more from here +4, एक और d से +5 +6 +7. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीज में क्या है, we have d5 4s2.
1 2 3 4 5 and 4s2. So it can lose these two electrons plus 2. It can lose this one plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. तो मैग्नीज में प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज की प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट इज शोन बाय द मैग्नीज. सो यहाँ पे अगर मैग्नीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे प्लस 7 इज कॉमन. फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड MnO4 माइनस है. मैग्नीज के x ले लो. 4 2s are 8 minus 8 is equal to -1. x is equal to plus 7. Similarly, plus 2 इसकी common oxidation state है. For example, in a compound MnCl2, oxidation state is plus 2. इसकी plus 4 oxidation state common है. These are common oxidation states. Means इन oxidation states में ज्यादा compounds पाए जाते हैं. ना उसके बाद हमारा आता है आयरन. उसके बाद आता है आयरन. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है. जैसा कि मैंने आपको कहा दीज रिप्रेजेंट दी इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 3d6 4s2. now 3d6 4s2 means we have like situation like this. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर्ड है. एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पेयर्ड है. so these are 4s electrons. they can take part in bond formation. out of 3d electrons only this and this will take part in bond formation. this will not take part in bond formation. हमने देखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दे रिमेन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो सी यहाँ पे क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होगा या तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा. दीज आर मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन. उसके बाद प्लस 4 भी हो सकता है इन सर्टेन कंपाउंड्स एंड प्लस 6 भी हो सकता है. बट आयरन में यूजुअली प्लस 2 एंड प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है. उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट की. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है. दैट इज 3d7 4s2. 3d7 4s2 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास 3d7 है. 1 2 3 4 5 6 7 and this is 4s2. means it can lose 2 electrons over here, that is plus 2. it can lose one more, that is plus 3. it can lose one more, plus 4 plus 5. but usually plus 2 and plus 3 are observed and plus 3 is the most common, most stable. Compounds in plus 3 oxidation state of cobalt are more stable. Why they are more stable? We will discuss them. This is based upon electrode reduction potential. Standard electrode reduction potential. On that basis, compounds in plus 3 oxidation state, they are more stable. It has been observed that compounds in plus 3 oxidation state, they are more stable. उसके बाद बात करते हैं जिंक की. उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट निकल की. निकल का एटॉमिक नंबर 28 है. 3d8 4s2. now see 3d8 means we have d orbitals 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4s2. so nickel can lose these electrons. it can form compounds in plus 2 oxidation state. it can lose also these electrons. it can form compounds in plus 4 oxidation state. plus 2 and plus 4 oxidation state is the common oxidation state of the nickel. nickel में आप usually plus 2 and plus 4 oxidation state के compounds देखोगे. you will see compounds in plus 2 and plus 4 oxidation states. उसके बाद बात करते हैं कॉपर की. एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1. तो कॉपर में क्या होता है मैंने आपको बताया है. मैंने मतलब एक लेक्चर अपलोड किया है, उसका नाम है जॉन टेलर इफेक्ट. आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने वो पढ़ाया था. जॉन टेलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे इट इज 3d10 4s1. यहाँ से कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए. इट शुड फॉर्म कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट कॉपर के केस में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लॉस होता है. means compounds in +2 oxidation state are also formed and these is the most stable oxidation state. most stable ऐसा नहीं होना चाहिए था. +1 में कंपाउंड स्टेबल होने चाहिए थे. बट कॉपर में क्या होता है कॉपर में जॉन टेलर इफेक्ट होता है. इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर में जॉन टेलर इफेक्ट होता है. John Teller effect. I have uploaded a detailed video on John Teller effect. You can go and watch there. What is John Teller effect? How it causes compounds in +2 oxidation state more stable. Now, last case is that of zinc. तो जिंक में क्या होता है एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2.
सो जिंक में क्या होगा, ओनली दीज 4s electrons they take part in bond formation. The common oxidation state of zinc is +2. Zinc can form compounds only in +2 oxidation state. So this is very important concept. All the oxidation states you will know from the electronic configuration. If you know how to write electronic configuration, you can easily show what are the oxidation states. और जो common oxidation states मैंने बोली वो तो आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगे. आपको अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये याद करने, दे आर टू बी रिमेम्बर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप बहुत सारे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे आप खुद ही देखोगे इन्हीं कंपाउंड्स में ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं. जैसे कि मैंने प्रैक्टिस वर्क में 10-20 एग्जांपल्स दिए थे, दे आर इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अगर आप उन एग्जांपल्स को करोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो आपको याद रहेगा कौन कौन से एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो अब इनकी ट्रेंड्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ना सिर्फ अगर हमारे पास एक ही ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फॉर एग्जांपल हमने देखा मैग्नीज फॉर्म कंपाउंड्स इन +7 +5 +3 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4. तो मोस्टली दीज कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +7 and +5, mostly compounds in higher oxidation state, they are formed with mostly compounds in higher oxidation state or mostly compounds are formed with fluorine and oxygen. मतलब अगर आप कोऑर्डिनेशन मेटल्स के कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर आप कंपाउंड्स देखोगे यू विल सी यूजुअली कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. तो रीजन क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है? द रीजन इज दैट ये जो हमारा फ्लोरीन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. Because of its high electronegativity, it easily removes electron from this d subshell. यहाँ से फ्लोरीन है, it's highly electronegative. Because of its high electronegativity, it easily removes electron from this d subshell. It's highly electronegative, because of which it easily removes electron from d subshell. That's why compounds with fluorine are most common. Number 2 with oxygen. तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा रीजन है? हमें पता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के केस में इसकी हाई बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड ऑक्सीजन में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन बनाता है p-pi-d-pi बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स. एंड बिकॉज मतलब कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन से p-pi-d-pi बॉन्ड्स बनाता है. एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, सो जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर यूजुअली विद फ्लोरीन. रीजन क्या है? बिकॉज फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से क्या होता है, इट इजिली रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी सर्कल. नंबर 2 विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रीजन क्या है, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे MnO4 माइनस की, तो यहाँ पे Mn डबल बॉन्ड O, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल गेट सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. Now this is a multiple bond, this bond is formed, this is a multiple bond, it is p-pi orbital of oxygen and d-pi orbital of manganese. This is p-pi-d-pi bond formation. So this multiple bond formation is because of p-pi orbital of oxygen and d-pi orbital of manganese. It is p-pi-d-pi bond formation. So that's why compounds in higher oxidation state are shown by oxygen and fluorine only. This was first important point. Number 2 important point. Number 2, for example अगर हम कंसिडर करेंगे MnO2, Mn2O3, MnO4 माइनस, यहाँ पे अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे x-4 is equal to 0, x is equal to +4, x this is 2x minus 6 is equal to 0, x is equal to 3 +3 and this is +7.
तो अगर हम इनका कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, उनका हम कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, कोवेलेंट नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट नेचर एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? कोवेलेंट नेचर डिपेंड करता है फाइजेनस रूल पे। फाइजेनस रूल पे, फाइजेनस रूल क्या कहता है? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन more covalent character, more covalent character. Now in this case the anion is same, that's oxygen oxygen oxygen. In this case the cation is Mn4 plus. Let this is A compound, this is B, this is C, and in this case cation is Mn3 plus. In this case the cation is Mn7 plus. आपको पता है जितनी पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे होगी उतना उसका साइज स्मॉल होता है। Therefore, यहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, दिस विल बी मोर कोवेलेंट कंपेयर टू दिस वन, कंपेयर टू दिस वन। द ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन, मोर स्मॉल इज द साइज एंड मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉल कैटायन देखना है, स्मॉल कैटायन कौन सा होगा? जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी। तो C विल बी मोर कोवेलेंट फॉलोड बाय A एंड देन फॉलोड बाय B। दिस इज कोवेलेंट ऑर्डर। इसके बाद इनका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट्स एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में मैंने आपको बताया है इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में ज्यादा है, दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस, सॉरी दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। सो एसिडिक नेचर विल बी C, greater than A, greater than B. The reason will be oxidation number. Oxidation number. It is based upon oxidation number. Higher the oxidation number, higher will be acidic nature. तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया। आई हैव कंप्लीटेड दिस कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। सो अगर आपको एग्जाम में कहीं भी पूछा जाएगा, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है। और फ्लोरीन क्यों कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन क्यों बनाता है मोस्टली, दैट इज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मैंने पहले इसमें डिस्कस किया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, वो दैट यू ऑल हैव टू डिस्कस दिस if it is asked in board exams. You have to discuss up to this point. Now thanks for watching this lecture. Today I'll try to upload one more lecture of this D and F block chemistry. In that I will discuss variation of melting and boiling point, ionization energy, enthalpy of atomization. Thanks for watching this lecture.